India is a welfare state. Hence, it is the duty of the government to take care of all the welfare activities meant for people. Apart from the government, there are also many stakeholders who contribute to the upliftment of society. Corporates are one of them. To accelerate the work of corporates through the involvement of NPOs and academia, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Bosch India Foundation, launched a project called Saksham, an initiative to engage, enable and empower. It would be a series of 5 training programs of 2-day duration each. The first module is on the conceptualization of CSR, wherein the concept and regulations were discussed among the participants. What had been the journey of Dalmia's from the conceptualization of the concept of charity to the level of domain of CSR activity in today's context? Mr. Sharma, I think you rightly said, and Dr. Goyal also very rightly summed it up. And in fact, before I go to Dalmia journey, I am tempted to comment on what Dr. Goyal just said. I think he is very apt in saying that, when we look at the CSR law, it's not just the 2% mandate that we need to look at, or it's not just the 2% of commitment which the law has brought into. I think he rightly said, the involvement of the board now into CSR, which has happened post this law has come into being. There being a CSR committee, there being independent directors on the CSR committee. And I have myself seen the shift from that output approach to the outcome and impact approach post these committees, and the board has become very involved into CSR. I think that has been very, relevantly stated by Dr. Goyal. Coming back to what Professor Sharma has asked me to say is about the journey of the Dalmia Group. And what he is essentially meant is that I would speak about the journey as it started as a philanthropist, and then, into the kind of institutionalized CSR that we are now into. I was also instructed to use both the languages, and incidentally today perhaps is the Hindi Divas also. तो मैं प्रोफेसर शर्मा मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा. दालमिया कुछ अभी 80-85 साल पुराना इंडस्ट्रियल ग्रुप है, और उस समय काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उस समय के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखें तो वो सामाजिक सेवा में उनका एक अलग एक विशेष रुचि रहा करती थी. लेकिन मुझे लगता है कि उस समय वो बोर्ड ड्रिवन शायद नहीं होता होगा, वो प्रमोटर ड्रिवन शायद ज्यादा होता होगा. और प्रमोटर्स जो है वो अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा वापस अपने सोसाइटी में खर्च करते थे, खास करके उन एरियाज में जहां उनकी इंडस्ट्री थी, और उन एरियाज में भी जहां उनका ओरिजिन था, राइट. सो देयर वाज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेसेस. दालमिया ने भी उस तरह से चैरिटी शुरू की थी, बट दालमिया का चैरिटी का भी एक प्रोफेसर शर्मा इतिहास है. वो इतिहास महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है. आप सबको याद होगा कि महात्मा गांधी जब अपनी मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का भी नारा दिया था, और उन्होंने खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा था कि आप जो है समाज के ट्रस्टीज की तरह हैं, और आपको उसी तरह से बिहेव करना है और उसी तरह से समाज की देखरेख करनी है. तो आई थिंक उस समय what I have read in the Dalmia Group's history is कि Dalmias were one of the earlier ones जिन्होंने महात्मा गांधी को एश्योर किया था कि हम इस मॉडल पे काम करेंगे, और उसी समय से उन्होंने एक ट्रस्टी की तरह हमेशा समाज में रहे, और उन्होंने समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया था. ये सब चलता रहा, और उसके बाद समय आया जब हमारे माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का बहुत एक्सपेंशन हो रहा था. And that was the time when every industry kind of realized that it was necessary for them to have a continuous engagement with the communities around you. सिर्फ एक इंडस्ट्री लगाना और 4 दीवारी में उसको चलाना जो है, that wasn't enough. बहुत जरूरी था कि आपके आसपास का समाज भी जो है आपके साथ, आपके उद्योग के साथ ग्रो करे. उस समय इसको सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट का भी नाम दिया गया था, बट इट वाजंट जस्ट a PR exercise for many of the corporates, neither for us. हमारा ये मानना था कि the growth has to be mutual. अगर हम किसी एरिया में जाके
किसी बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वी कांट जस्ट टेक अवे द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम दैट एरिया अनलेस द पीपल ऑफ दैट एरिया आल्सो ग्रो अलोंग विद अस। और वहां से एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के बेसिस पे फिर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना के हमने सीएसआर को एड्रेस, और सीएसआर, इनफैक्ट सीएसआर भी उस समय इतना पॉपुलर नाम नहीं था, हम लोग यूजुअली उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट कहा करते थे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनने लगे, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट्स को भी काउंट करना शुरू किया, जिसमें पार्टिसिपेशन के एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, और इस तरह से वो सब शुरुआत हुई। 2009-10 के आते आते दालमिया ग्रुप ने अपना फाउंडेशन भी क्रिएट कर लिया था। हमें ऐसा लगा कि अगर हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के एरिया में काम करना है तो देयर इज ए काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज दैट वी नीड टू क्रिएट, और उसके लिए हमने ये व्हीकल क्रिएट किया, और फिर वो एक्सपर्टीज को हमने बिल्ड करना शुरू किया। Like Dr. Goyal said, we will never be able to match up Bosch, 92% of our dividend going into charity. But even when there was no law, consistently we were spending in the range of 2 to 4%, sometimes more than that, on community development. और बीच में कुछ ग्रोथ के पीरियड में ऐसे साल भी है जब हमारी बॉटम लाइन वाजंट दैट गुड, उसके बावजूद भी हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट पे अपनी कमिटमेंट्स को जारी रखा और काम करते रहे। एंड देन ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ इट स्टोरी। 2014 में जब ये लॉ आया, तो आई ऑलवेज टेक प्राउड इन टेलिंग दिस टू एवरीवन कि हमें सिर्फ एक चेंज करना पड़ा था, और वो था कि इस लॉ के हिसाब से हमें एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ी बोर्ड में। उसके अलावा हमें कुछ ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद से बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ गया। रेगुलर इंटरवल्स पे लगभग हर बोर्ड मीटिंग में, सीएसआर कमेटी मीटिंग में हमारा सीएसआर प्रोग्राम को डिस्कस किया जाता है, पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है, इम्पैक्ट्स को समझा जाता है, एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ सीएसआर इन दालमिया हैज बीन। थैंक यू प्रोफेसर शर्मा। Non-compliance of the provisions of Section 135 of the Companies Act for CSR activities. You rightly said, Professor Sharma. Now, in fact, there is a legal implication also अगर आप compliant नहीं हैं तो। But मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनीज जो CSR को voluntarily ड्राइव करती हैं, उनके लिए compliance या नॉन compliance लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। पेनल्टी, वी डोंट थिंक मच ऑफ दैट, क्योंकि हमें पता है कि वो तो हमें करना ही है। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे बड़ा वरी है द रेपुटेशन ऑफ आवर ब्रांड और रेपुटेशन ऑफ आवर कंपनी। आई थिंक बहुत सारी कंपनीज जो वॉलंटरीली सीएसआर करती आई हैं, जो उसको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर चुकी हैं, जिनको अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और सीएसआर में कहीं कनेक्ट नजर आना शुरू हो गया है, आई थिंक उनका कंसर्न ये नहीं है कि अगर हम पूरा पैसा खर्च नहीं कर देंगे तो हमें कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। आई थिंक वो दैट्स द कंपनीज हैव गॉन बियॉन्ड दैट नाउ। लेकिन कंपनी की रेप्यूटेशन, आई थिंक दैट इज एट स्टेक, एंड दैट इज मच बियॉन्ड एंड मच बिगर देन अ फ्यू करोड़ रुपीज। समटाइम्स कंपनी की रेपुटेशन जो है वो इस हद तक भी इम्पैक्ट हो सकती है कि बिजनेस पे उसके बहुत बड़े रेपरकशंस आते हैं। मैं आपको एक बड़ा क्विक एग्जांपल इसका देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण। मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में, ये बड़ा चर्चा में रहा, एंड दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड द सीमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। क्योंकि दालमिया भारत लार्जली सीमेंट सेक्टर में है, तो दैट वाज ऑफ सम इंटरेस्ट टू मी, तो मैं उस स्टोरी को थोड़ा फॉलो करता रहा। पाकिस्तान में आई थिंक लाहौर के आसपास कहीं एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, पुराना, और उस मंदिर के पास एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, और उस वाटर बॉडी में पानी रहता था, और वो यूजुअली शिव भक्त जो जाते हैं वो वहां स्नान करते हैं, जैसे हमारे बाकी रिलीजियस प्लेसेस पे भी होता है। उसी एरिया में काफी सारे सीमेंट प्लांट्स भी आ गए, लाइमस्टोन की माइनिंग होने लगी। जब ये सब होने लगा तो धीरे धीरे वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट करने लग गया, और उस धीरे धीरे करते करते वो वाटर बॉडी जो है वो बिल्कुल सूख गई। अब जब वो वाटर बॉडी सूख गई तो देयर वर सम पीपल जिन्होंने उसकी शिकायत की सरकार को, और कुछ लोग कोर्ट में चले गए। इवेंचुअली दैट केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा
कि आप इस एरिया में सीमेंट प्लांट या तो ये कमिट करें कि दे विल वर्क एनफ ऑन रिप्लेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड दे इंश्योर कि इस वाटर बॉडी में पानी वापस आए, या फिर आप अपने प्लांट्स बंद कर दीजिए. नाउ यू लुक एट दिस केस फ्रॉम द बिजनेस से ये इम्पैक्ट हो रहा है ऑन दी वाटर टेबल, और हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिससे हम वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें अपने एरियाज में, तो हम जो है अपना बिजनेस को सस्टेनेबली चला सकते हैं. नथिंग अबाउट एनीथिंग, जैसे हमारे लॉ में अब लिखा है कि अगर आप पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे 2%, तो आप इतना आपको पेनल्टी हो सकता है. जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं CSR में, उनको पर्सनली 1/10 ऑफ दैट या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है जितना आपने स्पेंड नहीं किया है, विच एवर इज लेस. वो सब कुछ नथिंग इज इन्वॉल्व, बट स्टिल आप देखिए कि एक नॉन आई मीन आई विल नॉट कॉल इट नॉन कंप्लायंस बिकॉज देयर इज नो लॉ देयर, लेकिन एक लैक ऑफ एक्शन का इम्पैक्ट देखिए आप बिजनेस पे कितना बड़ा आ सकता है. द सेम कैन हैपन इन इंडिया ऑल्सो. वी हैव सीन सम कंपनीज जहां पे एनवायरमेंट के इश्यूज में कंपनी की सीरियसनेस नहीं थी एंड दे वर आस्क्ड टू शट देयर शॉप्स. तो आई थिंक मुझे लगता है कंपनीज आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट. जहां तक ये इश्यूज है कि पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आई एम श्योर in terms of the money that's not a big deal, but again जब वो लिस्ट में नाम आता है, आपने कहा कुछ 350 कंपनीज जिनकी लिस्ट बनी है कि वो कंप्लायंट नहीं है, आई एम श्योर none of the Indian companies would want their name to appear in that list. I think वो एक बड़ा इशू बन जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि if your CSR is kind of merged with the business, if it has a business connect, और आप उस तरह से उसको एक ड्राइव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता one will ever get into that sort of a situation कि जहां पे ये issues आएंगे. I think we have already close to the end of the session, so I'll end there, Professor Sharma. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.